Hi, this is Anant Vidhat, and you are watching Bollywood Hangama. What is the importance of patience for any actor? Because, say, taking training in, say, college, at the same time after that going to Poland, Kerala, and you've spoken about New York and other places, and 4 or 5 years, the entire struggle has been there. You've done 2 films in the interim. You've done Mardani, and you've done Gunde as well. But this is the big break that has taken everyone a note of you. How important is the patience for any actor? For an actor, I think every time you are on stage, or you are waiting for the shot to be taken, or you are waiting in the shoot, or you are waiting for that particular opportunity, I think patience is, I think, essential, very essential. In any form, for that matter, anybody who is pursuing any sort of form which has basic fundamentals, the first thing which you learn, or first thing which you have to learn, is patience. Even in martial arts or any sort of form, yoga or anything, the first thing is that you should be very centered, which we say as actors. We say that you need to be centered, focused and patient. So वो होना तो बहुत ज़रूरी है. And अगर नहीं भी, because what I know of my experience is that I was very impatient in the beginning. I don't think that I've met anybody who's in my experience I was very impatient. But this form taught me patience, and then you get to know that patience is very, very essential. Now let's come back to a few of the scenes which I think have become like memorable right now. When Anushka tells Salman that you're a shit guy, and Salman is very happy with the entire thing, and then you come with the dictionary. I'm sure that you've seen the reactions, the way it happens in theatre. So you like to talk about that particular scene, and if you can just say a few lines from that scene in person. Yeah, that scene on paper in itself was very funny. And he calls he's saying shit guy. वो कहता bro राज सुल्तान, बोले इधर हूँ. वो जाता है, बोला भाई यो से हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी. सो शब्दकोश बड़ा ज़रूरी शब्द था यहाँ, शब्दकोश डिक्शनरी. और मैंने पता लगा लिया है कि शिट गाय का क्या मतलब हो गया. बोले क्या मतलब हो गया. बोला भाई शिट का मतलब हो गया है टट्टी, और गाय का मतलब हो गया है लड़का. पूरी बात का अनुवाद है टट्टी लड़का. तो ये जो चीज़ थी, तो अब इसको हम सीधा भी बोल सकते हैं, लेकिन वो ये था कि भाई नहीं, इसको अब इत्मीनान से आप पूरा समझाएंगे कि शिट गाय का क्या मतलब हो. That's what it is. The way that laid back manner in which you see the dialogues is something which is a USP actually. That कहीं ना कहीं वो, जैसे मैंने effortlessness के बारे में आपसे बात करी, that it seems like very flowing, like बहुत ही अपने terms and condition में जैसे नदी बह रही है. And then there are serious dialogues as well where people are taking note of it, that हिमालय पर्वत वाला जो आप जिस तरीके से बोलते हैं, आप सुल्तान को समझ ही ना पाए, वो भी अपने आप में एक, आई थिंक उसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है कहीं ना कहीं. कुछ उसके बारे में बोलना चाहेंगे आप? हिमालय पर्वत वाला. नहीं सर, वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट था. दैट सीन वाज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जनरली व्हाट हैपेंस इज कि मजाक के सीन या ये जो मज़ेदार सीन्स होते हैं जो हमें मज़ा दिलाते हैं, ये सीन 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, क्योंकि ये सीन्स आपकी कहानी को अब और आगे नहीं बढ़ा रहे हैं. लेकिन इफ़ यू सी द कोर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच गोविंद डज टू दिस स्क्रीन प्ले is that he becomes a person who introduces you to Sultan, especially Akash Oberoi. And that is the scene where he वो हमने किया था कि he tells the entire story कि क्या हुआ 6 महीने मैंने बात नहीं की उससे, मैं रास्ता बदल लेता था, वो आता था, तो फिर दादी गुजर गई, अब्बा भी चले गए, अकेला पड़ गया जी ये. एंड देन ही लुक्स एट हिम एंड ही सेज कि आप अच्छे लगे मुझे, इसलिए आपको एक बात बताता हूँ, आप इसको ऑफर दोगे ना, ये नहीं मानेगा, पर इसका दिल छू लिया ना आपने, तो ये हिमालय पर्वत पे चढ़ जाएगा फटाफट. जस्ट टू टेल हिम कि गो थ्रू द रूट ऑफ हार्ट, बिकॉज ये आदमी सरल है, एंड वी वांटेड टू हैव दैट थिंग, अली वांटेड दिस, कि ये जो एक सिंपल टन कैरेक्टर होता है, एकदम सिंपल है हरियाणा के, बेसिक बात, वो चीज़ एक अंडरलाइन होना और ये सारी चीज़ आना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है, क्योंकि ग्रेविटी या कोर जो है इस कैरेक्टर का, वो इस सीन में या उन सीन्स में जहाँ पर ये एंड में सुल्तान के पीछे खड़ा हुआ है,
बाकी तो दोस्तों यारों में जो हमारी मस्ती चलती है तो कभी एक किस्सा, कभी दो किस्सा, कभी 10 किस्से, किस्से ख़त्म नहीं होते। लेकिन वो मोमेंट जब आपको वाकई में उसके लिए टेस्ट देना है या वाकई में आपको वहाँ खरा उतरना है दोस्ती पे, यू नो द मोमेंट जहाँ पर आपको बड़ी सीरियसली एक बात कन्वे करनी है, क्योंकि वहाँ पर अगर मस्ती हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। इनफैक्ट एक जिस तरीके से आप ब्रो कहते हैं, क्या है कि दैट इवन इफ यू आर फ्रॉम से रूरल इंडिया, बट वहाँ पर भी ब्रो कहा जाता है, यू नो इट मोर फॉर द इंटायर दैट एक स्टेटस सिंबल के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट आई नो इंग्लिश एंड आई नो द इंग्लिश स्लैंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स। और ये कूल है, और ये कूल चीज़ है। हाँ, ये कूल चीज़ है। वो ब्रो आप जिस तरीके से कहते हैं ना, इट फ्लोज वेरी नेचुरली वंस अगेन, you know that entire bro element which is coming along, and even Salman says bro to you as well. Bro. Okay.